Welcome students once again. In this lecture we'll discuss India size and location. First we'll discuss latitude and longitude. What is latitude and what is longitude? Here you see the picture of Earth. It is a Earth. Earth is divided two parts. One is North Pole and another one is South Pole. And 0 degree, we'll call 0 degree as equator, and 90 degree North Pole and 90 degree South Pole. These are the 0 degree and 90 degree. These are the imaginary lines. And how we create these lines? These are the angular distance between the lines are called imaginary lines. This is called latitudes. Angular distance means suppose सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हमने सेंटर ऑफ द अर्थ में कोई हमने एंगल लिया तो एंगल सपोज ये आया, इस एंगल का माप सपोज 30 डिग्री आया, तो हमने उस लाइन को हमने क्या कर दिया, 30 डिग्री कर दिया. और ये नॉर्थ में है तो इसको हमने 30 डिग्री नॉर्थ कर दिया. सो वी हैव एज्यूम्ड दीज आर लाइंस. एंड टोटल हमको मालूम है इक्वेटर हमारा अर्थ को दो सेग्रीगेट पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ पोल, सेकेंड वन इज़ साउथ पोल. एंड टोटल जो लाइंस होंगी हमारी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल 90 एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल दीज लाइंस आर 90 एंड वन लाइन इज देयर दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. टोटल लाइंस आर 90 plus 90 plus 1 equal to 181 lines. Latitude lines are there in Earth. These are the imaginary lines. And next, between 0 degree to 1 degree, 0 degree equator, this is equator. 0 degree to 1 degree, there is 100.32 kilometer distance between these two lines. So now you understand. These are the distance between 0 degree to 1 degree. If suppose anyone is standing here and those whose friend is standing here, there is a 1 degree gap. तो these दोनों के बीच में जो distance होगी that is 111.32 किलोमीटर. और इनके बीच का जो गैप होता है वो 4 मिनट का गैप होता है. If when we took longitude, then we'll discuss about this thing in longitude. Now हमने इंडिया की लोकेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इंडिया. तो हमको मालूम है इंडिया कहाँ पर है. Now we know that India's location, it is 8.4 degree north to 37.6 degree north. Now we'll find out this location on the Earth. We know that above equator that is North Pole and below part that is South Pole in this map. So now we have to find out 8.4 degree means India is located here and it is extended towards the North Pole 37.6. So this is the area where we find the location of India. Now this is latitudinal extent of India, 8.4 degree north to 37.6 degree north. Now we know that our India is located on the towards the northern hemisphere, and in southern hemisphere only two continents, that is Africa and America. They both are lies on northern hemisphere and southern hemisphere. Only Australian continent is the one most single continent who is totally lies on the southern hemisphere. And now we just discuss about the distance between 2 degree north and 0 degree and 1 degree and towards, and the lines near the equator, these lines are maximized, and if we go upwards towards the north side, these lines are tiny dots. In 90 degree with this
डॉट्स वी सिंबलाइज विद द डॉट्स। अब हमको मालूम है कि कोई भी मिसाइल हमको छोड़नी है, हमको मालूम है कि इंडिया जो मिसाइल परीक्षण करता है कि वो एक्यूरेसी है उसमें। अब वो एक्यूरेसी कैसे आती है? बिकॉज वी हैव द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हमने क्या कर दिया है, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट फिक्स कर दिया है उसके ऊपर, और उसी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट उसके द्वारा हम लोग ने उसकी कंप्यूटराइज उसमें फिक्स कर दिया है। और जब भी हम लोग छोड़ते हैं तो जो मिसाइल्स है सीधे उसी पॉइंट पर जाके पड़ती है जहाँ पर हमने उसको फिक्स कर रखा है। तो ये हम लोग जो टारगेट हिट करता है, कैसे टारगेट हिट करता है? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स दैट मिसाइल हिट द टारगेट विच वी हैव फिक्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। नाउ अभी आप लोग देखते हो कि गूगल अर्थ में, गूगल मैप में जाके हम लोग लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। गूगल के पास नहीं है जानकारी कौन सा शहर चंपा होता है, कौन सा पिथौरागढ़ है, कौन सा लाहौरघाट है। बट विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसी लैटिट्यूडनल, हर जगह का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अलग अलग होता है, तो इसी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के पास गूगल के पास जानकारी रहती है भाई ये कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है और कौन सा लंबा रूट है। कभी हम लोग गूगल को सेटिंग में जाएंगे तो वो और पूरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को दिखाएगा वहाँ पर। तो ये थी बात हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की। यहाँ पर मेजर्स हैं, 2-3 मेजर्स चीज़ें हैं जो वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज (23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमको मालूम है कि हमारा इंडिया बोथ द एक्सटेंट, नीचे इक्वेटर के नज़दीक भी है और हमारा नॉर्थ पोल के नज़दीक भी है। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 8 स्टेट्स में डिवाइड करता है, और इन टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज़ वन इज़, हम लोग कहते हैं इसको ट्रॉपिकल वेदर होता है वहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेट वेदर होता है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को। एक तो टेम्परेट वेदर जहाँ पर इंडिया फाइंड करता है, दूसरा ट्रॉपिकल वेदर जो बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर, दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रॉपिकल वेदर। वन मोर थिंग, व्हाई वी हैव टेकन 23.5 डिग्री एज अ मेजर लाइन, बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है टूवर्ड्स द सन, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दैट लाइन फॉर द मेजरिंग लैटिट्यूडनल लाइन। तो ये 23 डिग्री हाफ एट 23 डिग्री साउथ ये हमने लाइन ली है। अब क्या होता है, सन जब होता है अपने पीक में होता है तो इक्वेटर में तो इसकी रेज जाती हैं, लेकिन जब सन गर्मी के टाइम में टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, और धीरे धीरे ये इसका एक जो 1 साल की जो पूरी प्रोसेस है, धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ से नीचे को आना शुरू होता है और फिर टूवर्ड्स द साउथ की तरफ जाता है। तो ये पूरा 1 साल का चक्कर है। जब यहाँ पर गर्मी होती है तो 23.5 डिग्री साउथ में क्या होगा, जाड़ा होगा, और 23.5 डिग्री साउथ में जब गर्मी होगी तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर जाड़ा होगा। अब हमको मालूम है जाड़ा यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के टाइम में यहाँ पर जाड़ा होता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के टाइम में वहीं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में क्या होगा, गर्मी होगी। तो ये सन की जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, बिकॉज अर्थ इज लिटिल बिट स्लांटेड टुवर्ड्स द सन, 23.5 डिग्री स्लांटेड है। तो हमने 23.5 डिग्री को एक जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लिया है, दूसरी जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मान लिया है। तो ये अब हम विल डिस्कस ऑन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे पास क्या है। हमको मालूम है कि
0 डिग्री ग्रीनविच मीन लाइन इन स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन लाइन, इट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री। इट पासेस थ्रू लंदन, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। 0 डिग्री कहाँ से, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ईस्ट का पार्ट हो गया, एक वेस्ट का पार्ट हो गया। ईस्ट का पार्ट और वेस्ट का, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट। अब 0 डिग्री जो लाइन है वो कहाँ से जाती है, हमारी लंदन के ग्रीनविच। लंदन एक छोटा सा आइलैंड है, यूरोप में छोटा सा आइलैंड है, तो वहाँ से ये लाइन होके निकलती है। अब 0 डिग्री से 1 डिग्री आने में हमको मालूम है 0 डिग्री से 1 डिग्री आने में हमको 4 मिनट का टाइम लगता है। अब अर्थ का रोटेशन क्या है, 24 आवर्स। हमको मालूम है अर्थ का रोटेशन कितनी है, 24 आवर्स में, क्योंकि सर्किल व्हेनेवर विल टॉक अबाउट द सर्किल हैज़ 360 डिग्री। सर्किल के पास कितना हुआ, 360। अब 24 आवर्स में 360 डिग्री ये करता है, तो इसको हम लोग 24 आवर्स को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। इट इज़ 1440 360 अपॉन, अब हम लोग 1 डिग्री के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440 अपॉन 360, तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा 4 जा, तो एग्जैक्ट 4 मिनट हमारे पास आ गया। इट मीन्स मुझे यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट का टाइम लगा। और कोई दूसरा 2 डिग्री में बैठा हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 2 डिग्री देयर इज़ 8 मिनट का टाइम डिस्टेंस आएगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो इस वाली लाइन में कितना बज रहा होगा, 12:08 बज रहा होगा। और यही चीज़ टोटल हमारे पास कितने टाइम जोन्स होंगे, 24 टाइम जोन्स होंगे। टोटल हमारे पास 24 टाइम जोन्स होंगे। ये तो हमने देख लिया कैसे हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में कैसे टाइम कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4 मिनट का टाइम हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा इंडियन कंस्टेंट में बात करते हैं। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 पॉइंट। अगर हम लोग होल उसमें देखें तो इंडिया के पास 30 डिग्री का यहाँ पर अंतर है, तो इंडिया के पास क्या होना चाहिए, 30 टाइम जोन होंगे। बट फॉर द हमारी जो उसकी सुविधा के हिसाब से इंडियन का एक ही IIST एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, 82.33 डिग्री, ठीक है, 82.30 हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया हुआ है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से जाता है, उत्तर प्रदेश के नैनी से होते हुए जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो हमारे इसके बीच में क्या है, 30 है, तो 30 को हम लोग 1 डिग्री में 4 है तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे बीच में क्या है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए हमको क्या मिलेगा, 2 घंटे का, 2 आवर्स का, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का क्या है डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को पाटने के लिए हमने क्या किया है, 82.3 डिग्री को हम इंडिया के अंदर 82.3 डिग्री जो लाइन है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बोल दिया है। और उसी के हिसाब से इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है। तो इससे हम लोग इंडिया का टाइम जोन निकाल सकते हैं। हाँ, 82 हमने कहा कि इंडियन एक्सटेंट स्टार्ट फ्रॉम 68.7 टू 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये जो गुजरात है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के बीच की दूरी हमारे अगर हम लोग देखें तो ये 30 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 2 आवर्स। बट हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के हिसाब से एक हमने लाइन ली है, इसको हमने क्या बोल दिया है, 82.3 डिग्री ईस्ट बोल दिया है। और ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है। और ये लाइन 5 स्टेट्स को क्रॉस करती है, जिसमें 5 स्टेट क्या हैं, यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
ये 5 स्टेट्स हैं, ये लाइन इन 5 स्टेट्स से होकर गुजरती है। ये 82.3 डिग्री क्या है, ईस्ट लाइन है, जो हमारे 5 स्टेट से होकर गुजरते हैं। और यही हमारे जो इंडिया के अंदर है टाइम को क्या करती है, डिक्लेयर करती है। इसीलिए इंडिया के अंदर एक टाइम जोन है, जो गुजरात में बज रहा होगा वही अरुणाचल प्रदेश में भी बज रहा होगा। अगर ये टाइम जोन नहीं होते तो हमको वी हैव टू हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में हमको अपनी घड़ी बार बार चेंज करनी पड़ती। बट ये जो बिकॉज ऑफ दिस टाइम जोन हमने क्या कर दिया है, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग टाइम जोन्स को एक ही टाइम जोन्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हम लोग कहीं से कहीं भी जाएँ तो हमको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये एक आंसर आपका जो हो गया कि क्यों हमने एक टाइम जोन लिया है, ताकि हम लोग आसानी से इधर उधर ट्रैवल कर सकें। और एक वही चीज़ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से होते हुए जाता है। ये 8 स्टेट हैं: गुजरात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 line. It passes through 8 states: गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान का छोटा सा पार्ट इसमें अगर हम लोग ये लाइन लें तो ये केवल टच करते हुए जाता है, बस राजस्थान का छोटा हुआ पार्ट इसमें टच करता। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और मणिपुर, मिज़ोरम। ये जो ट्रॉपिक कैंसर है 8 लाइंस को 8 स्टेट्स को वो करता है। और जो हमारे पास 83 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो है IST है वो 82.3 डिग्री ईस्ट है, वो हमारे को 5 स्टेट से डिवाइड होके जाता है। तो ये हमारे पास टाइम जोन है। कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारे इंडिया के अंदर टाइम क्या है, चेंज नहीं होता है। 23.5 लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया, 82.30 ईस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, ये कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिक्लेयर करता है। नाउ हम अब इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज़ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में 180 डिग्री हमारे पास क्या है, एक ही लाइन होती है। जैसे 180 डिग्री, दीज आर द 0 डिग्री और दीज आर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही लाइन होती है, इसलिए टोटल जो हमारे पास लाइन होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं दैट इज़ 360, बिकॉज ये एक ही लाइन है, दैट्स वाई दीज लाइन्स आर 360। टोटल लाइन्स हमारे पास 360 हैं। अब हम लोग देखते हैं 180 डिग्री को हम लोग क्या होते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन को बोलते हैं। क्यों है डेट लाइन? हमको मालूम है कि हमारा जो 0 डिग्री है जो ग्रीनविच से होते हुए जाता है, ग्रीनविच से आगे का टाइम हमारे पास क्या होता है, 12 घंटे आगे का होता है। और जो ग्रीनविच से पीछे है, जो वेस्ट की तरफ है, उधर का टाइम हमारे पास क्या होता है, 12 घंटे पीछे होता है। तो जो कंट्री 0 डिग्री के आगे ईस्ट की साइड को पढ़ेंगे उनका टाइम आगे होता है, और जो कंट्रीज़ टुवर्ड्स द वेस्ट पढ़ेंगे उनका टाइम 12 घंटे पीछे होगा। जैसे विल टॉक अबाउट द इंडिया का टाइम हमारे पास कितना है, 82.30 है। स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का 82.30 डिक्लेयर होता है। तो ये आगे कैसे है, तो इंडिया 0 डिग्री से 82 डिग्री जाने में 1 डिग्री जाने में हमको मालूम है कितना अंतर आता है, 82.5 कर लेते हैं, इसको हाफ बोलते हैं इसको। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। तो इसका देखें तो 330 मिनट्स। 330 मिनट्स को हम लोग अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो हमको जब भी हम लोग मोबाइल में देखते हैं तो हमारा टाइम जोन क्या था, +5। हमको मालूम है हमारा टाइम जोन क्या है, 5 आवर्स 30 मिनट्स क्या है, आगे है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। अगर कोई सपोज
यहाँ पर है। हमको मालूम है कि जब हम लोग वर्ल्ड का मैप देखें तो वर्ल्ड का मैप में ये ईस्ट का वेस्ट का पार्ट है, ये हमारे पास ईस्ट का पार्ट है। क्योंकि हमारे पास गोल है तो ये गोल है, तो अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं निकलूँगा कहाँ पर, इस साइड पे निकलूँगा, ईस्ट। अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो अगर वापस यहाँ पर आया हूँ तो ये कहाँ से निकलूँगा मैं, ये वेस्ट में निकलूँगा। यहाँ पर ईस्ट हो गया। ईस्ट में यहाँ पर ईस्ट हमको मालूम है ईस्ट की जगह 12 घंटे आगे होता है। अगर यहाँ पर मंडे है, सपोज़ इस वाले हिस्से में अगर ये हम लोग को 0 डिग्री हम लोग मान लें, इसको ये अगर हम लोग 0 डिग्री मान लें तो इस वाले हिस्से में यहाँ पर मंडे है, तो यहाँ पर कौन सा डे होगा, क्योंकि हम 12 घंटे पीछे हैं तो यहाँ पर संडे होगा। तो 180 डिग्री जो लाइन है वो हमारे पास क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है डेट, कैसे डेट हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। और ये वन थिंग आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द 180 डिग्री लाइन, दिस लाइन इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर लाइन, दिस लाइन इज जिगजैगिंग लाइन। ये लाइन कैसी है, ये इस टाइप से लाइन है। अब ऐसे क्यों लाइन है, क्योंकि हमारा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो 180 डिग्री में लाइज होता है। तो 180 डिग्री में सभी जगह एक ही टाइम जोन फॉलो हो, इसलिए ये 180 डिग्री लाइन क्या है, जिगजैगिंग मोड में होती है। क्यों होती है, क्योंकि सपोज़ ये लाइन यहाँ से कट रही है, ये लैंड वाला एरिया आता है, इधर संडे होगा तो इधर मंडे होगा, तो दोनों एक ही कंट्री में अलग अलग जगह में बच्चे क्या है, बच्चे पेरेंट्स व्हाट एवर जो लिविंग देयर दे कंफ्यूज। सो ये 180 डिग्री लाइन को क्या किया है, जो लैंड का एरिया है उसको छोड़ के बाकी जो एरिया है उसको ले लिया। जैसे वाटर का सी लेवल जो वाटर बॉडीज़ का है, वाटर बॉडीज़ को ले लिया है, और लैंड के एरिया जहाँ पर लैंड का एरिया आता है उसको वहाँ पर उसने क्या कर दिया है, कर्व दे दिया है। इसीलिए 180 डिग्री लाइन क्या है, स्ट्रेट ना होकर जिगजैग लाइन है। तो टुडे वी हैव गोइंग टू कंक्लूड दिस लेसन हियर। Tomorrow definitely we'll discuss on the Indian boundaries, Indian states. We'll talk about the Indian states. So thank you.